Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the blood supply and the lymphatic drainage of the stomach. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में. तो जब भी हम ब्लड सप्लाई स्टडी करते हैं स्टमक की, सो विल बी स्टडिंग इट अलॉन्ग द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, अलॉन्ग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड अलॉन्ग द फंडस ऑफ द स्टमक. अच्छा, अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर स्टमक विल बी फाइंडिंग टू आर्टरीज, द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. इन दोनों का स्टमोसिस होता है ऑन द लेसर कर्वेचर स्टमक, और दोनों यहाँ पे सप्लाई करती हैं इस रीजन को. नाउ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज बेसिकली ब्रांच ऑफ सिलिक ट्रंक. अच्छा, एक बात हम पहले समझ लेते हैं दैट वी हैव अ सिंगल आर्टरी असाइन फॉर अ सिंगल ग्रुप. लाइक जो फोरगट से रिलेटेड स्ट्रक्चर उन सबको सप्लाई करेगी सिलिक ट्रंक, जो हमारे पास मिडगट से रिलेटेड स्ट्रक्चर उन सबको सप्लाई करेगी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, एंड द हाइंडगट स्ट्रक्चर विल बी सप्लाइड बाय द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. जो हमारे पास आता है सिलिक ट्रंक को सप्लाई करता है फोरगट स्ट्रक्चर में आता है एसोफेगस, स्टमक, ड्यूडनम का फर्स्ट एंड हाफ पोर्शन. ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास मिडगट आता है उसमें आता है रिमेनिंग कॉल्स ऑफ जेजिनम, आइलियम, द असेंडिंग कॉलोन, द ट्रांसवर्स कॉलोन का हाफ पोर्शन. ठीक है, वो सारा मिडगट में आ गया. द हाइडगट विल बी इंक्लूडिंग द लेटर हाफ ऑफ द transverse colon, the descending colon, the segment colon, and the rectum and the anal canal. So in this way, we have a single artery assigned for a single group of structures. So as you know that stomach is included in the foregut. So इसकी जो आर्टरी होगी कौन सा होगा, सिलिक ट्रंक. तो बेसिकली जितने भी हम इसकी आर्टरीज देखेंगे जो कि इसके डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं, विच आर बेसिकली द ब्रांचेस ऑफ द सिलिक ट्रंक. लाइक जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ब्रांच ऑफ द सिलिक ट्रंक, जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी से ब्रांच ऑफ द प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, विच इन टर्न इज एक्चुअली ब्रांच ऑफ सिलिक ट्रंक. सो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी branch of the celiac trunk, the right gastric artery which is a branch of the proper hepatic artery, both will be supplying the lesser curvature of stomach, and the greater curvature will be supplied by the left gastroepiploic artery which is a branch of splenic artery, and the right gastroepiploic artery which is a branch of the gastroduodenal artery. So in this way the gastroduodenal artery and the splenic artery will be giving the left gastroepiploic artery and the right gastroepiploic artery, and this will be supplying the greater curvature of the stomach. So ये होगी लेफ्ट लेसर कर्वेचर सप्लाई, ये होगी ग्रेटर कर्वेचर सप्लाई. अगर बात करी जाए इसकी फंडस की, तो फंडस विल सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ द short gastric artery which are branches of the splenic artery. So short gastric arteries, the right and left gastric artery, the right and left gastroepiploic artery, left वाली आती है कहाँ से, from the gastroduodenal artery which is in turn is the branch of the celiac trunk, and the right gastroepiploic artery is coming from the splenic artery. Actually sorry, right वाली आती है gastroduodenal से और left वाली आती है splenic artery से. And then these short gastric arteries are also the branches of the splenic artery, और ये तो हम देख चुके हैं. So this was the blood supply of the stomach. अगर हम बात करी जाए venous drainage की, venous drainage will be in three veins: the portal vein, the superior mesenteric vein, and the splenic vein. So these three veins basically will be draining the stomach. अगर हम बात करें left and right gastric veins की, जो ये वाली थी, these will be draining into the portal vein, right? Then we had the second group of vein, that was the right and left gastroepiploic veins. These will be draining into the superior mesenteric vein, right? And then we had the short gastric veins, and these will be draining into the splenic veins. And this way, these three veins are basically forming the venous drainage of the stomach, the whole of stomach. The right and left gastric draining into the portal vein, the right and left gastroepiploic veins draining into the superior mesenteric vein, and the short gastric veins draining into the splenic vein. So ये होगी बात. अब बात करते हैं about the lymphatic drainage of stomach. In regard to that lymphatic drainage, we have four main areas of stomach. First of all, we have the left upper 1/3 portion. This one is being supplied or is being drained by the पैंक्रियाटिको-स्प्लेनिक नोड्स. अच्छा, एक बात याद रखनी है, जितना भी हम लिम्फ ड्रेन करेंगे ना हमारे स्टमक से, वो इवेंचुअली कहाँ पर जाएगा, टुवर्ड्स द सिलिक नोड्स. ये जब नाम रखते हैं सिलिक नोड्स, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स, राइट गैस्ट्रोपेप्लो, ये हम इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे ये वाली आर्टरीज पड़ी होती हैं. ठीक है, और इन आर्टरीज के अराउंड लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं. हम उन्हीं को नाम भी वो आर्टरी वाले दे देते हैं. लाइक जो सिलिक नोड्स हैं, आप अज्यूम कर लें कहाँ प्रेजेंट होंगे, अलॉन्ग द सिलिक आर्टरी. नाउ दिस सिलिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सब आ कहाँ से रहेंगे? दीज आर द वेंट्रल ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा. जैसे एओर्टा एंटर होता है ना एब्डोमेन में, वहाँ से इसकी वेंट्रल ब्रांचेस निकलती हैं. कुछ डोर्सल भी होती हैं, कुछ लेटरल भी होते हैं, बट मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है हमारे गट रीजन के लिए वो होती है उसकी वेंट्रल या एंटीरियर ब्रांचेस, जिसमें सिलिक ट्रंक होता है फर्स्ट, सेकंड होता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, एंड थर्ड होती है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. सो इन्हीं के अलॉन्ग कुछ होते हैं हमारे लिम्फ नोड्स जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ड्रेन कर रहे होते हैं. द फर्स्ट वन इज द सिलिक ट्रंक, तो उसके अराउंड होंगे सिलिक लिम्फ नोड्स. तो जितना भी हमारे स्टमक का होता है लिम्फ, वो सारा इवेंचुअली कहाँ पर ड्रेन करते हैं, इनटू द सिलिक नोड्स, और वहाँ से फिर जाता है इनटू द लेफ्ट इंटेस्टाइनल ट्रंक, या जो भी हमसे कह लें इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक, और वहाँ से फिर सिस्टर्ना काली में जाता है. सो इन दिस वे द लिम्फ विल बी ड्रेन इवेंचुअली इनटू द सिस्टर्ना काली फ्रॉम ऑल दिस रीजन्स. अच्छा, हाँ, हम बात कर रहे थे दैट द फर्स्ट पोर्शन, दैट इज़ द अपर लेफ्ट पोर्शन विल बी ड्रेन इनटू द पैंक्रियाटिको-स्प्लेनिक नोड्स, वहाँ से जाएगा इनटू द सिलिक नोड्स. ये हो गया हमारा फर्स्ट वाली एक्सप्लाई. द सेकंड एरिया इज गोइंग टू बी द राइट 2/3 पोर्शन. दिस होल विल बी ड्रेनिंग इनटू द लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स, और वहाँ से फिर जाएगा इवेंचुअली इनटू द
सिलिक नोड्स, और ये वाला एरिया थोड़ा सा एसोफेगस का रीजन भी सप्लाई वो ड्रेन कर जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट पोर्शन इज गोइंग टू बी द लोअर वन लेफ्ट 1/3 पोर्शन, दिस वन विल सप्लाइड बाय और ड्रेन्ड बाय द राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक नोड्स। अच्छा, हम जैसे देख रहे हैं कि हम डिफरेंट नोड्स को स्टडी कर रहे हैं, यही नोड्स बेसिकली यहीं पे हमें आर्टरीज भी इसी नेम की नजर आती हैं। वी नो दैट इस जो हमें राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरीज भी नजर आती है, हम उसी रिलेशन से यहाँ के नोड्स भी याद कर सकते हैं। सो दिस वाज द लोअर लेफ्ट पोर्शन बीइंग ड्रेन्ड बाय द राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक नोड्स। अच्छा, और फिर इवेंचुअली इनटू द आवर प्यारे से सिलिक नोड्स। लेकिन इसका पाथ थोड़ा डिफरेंट होता है इन दिस वे कि राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक नोड्स से जो होता है लिम्फोस आ जाते हैं टू द हेपेटिक नोड्स, हेपेटिक नोड्स से जाएगा फिर सिलिक नोड्स में। यहाँ पे बेसिकली ना इन द जंक्शन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ड्यूटनम यहाँ पे हमें सब पाइलोरिक नोड्स भी नजर आते हैं। तो पाइलोरिक नोड्स हैं जो कि इनफीरियर टू द पाइलोरस रीजन प्रेजेंट है, एक होता है सब पाइलोरिक नोड्स यहाँ पे पड़े होते हैं। सो राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक नोड से जाता है टू द सब पाइलोरिक नोड्स, वहाँ जाता है टुवर्ड्स द हेपेटिक नोड्स, वहाँ जाता है टुवर्ड्स द सिलिक नोड्स। तो ऐसे एक पाथ मिलता है हमें लिम्फ ड्रेनेज का फ्रॉम द लोअर लेफ्ट पोर्शन। अच्छा, ये है लेफ्ट पोर्शन, लेकिन यहाँ ड्रेन कहाँ पर हो रहे हैं टू द राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक नोड्स, तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट द फाइनल एरिया इज द पाइलोरस रीजन, दिस विल बी ड्रेन्ड इनटू द हेपेटिक नोड्स, और हेपेटिक नोड्स से जाएगा टुवर्ड्स दी लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स, और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स से जाएगा इनटू द सिलिक नोड्स। सो हेपेटिक नोड्स से लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स एंड देन द सिलिक नोड्स। तो ये एक रीजन बनता है हमारा पाइलोरस का, जहाँ से यहाँ से ड्रेनेज हो रही है। सो दिस वी हैव द 4 मेन रीजन ऑफ द स्टमक बीइंग ड्रेन्ड बट डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, लाइक जो हमारे पास लेफ्ट अपर 1/3 पोर्शन था वो पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड्स में ड्रेन करता है, क्योंकि वी नो दैट ऑन द लेफ्ट ऑफ स्टमक वी हैव द स्प्लेन, है ना। एंड देन द राइट upper 2/3 portion will be drained by the left gastric nodes and eventually into the celiac nodes. Then the left lower 2/3 portion will be drained by the right gastroepiploic nodes, और वहाँ से पे जाएगा into the hepatic nodes, the subpyloric nodes and the celiac trunk or celiac trunk के nodes, I mean. Then the right lower 1/3 portion will be drained by the pyloric lymph nodes, as you can see here, or pyloric lymph nodes. Eventually it will be reaching the celiac nodes. Right. So along with the pyloric nodes, we'll be having the hepatic nodes, the left gastric nodes, and the final destination will be the celiac trunk, और वहाँ से जाता है towards the intestinal lymph trunk, वहाँ से जाता है towards the cisterna chyli, और eventually these will be reaching the supraclavicular region as well. अच्छा, कहा यह जाता है कि sometimes what we get is कि supraclavicular nodes ना left side के swell हो जाते हैं and they form prominent projection, and that is called as a Trojer sign, and it's a sign that the metastasis has happened from the rest of the body towards the supraclavicular lymph nodes, and this is called as Trojer sign, और इसी वजह से हम लोग supraclavicular lymph nodes को वर्कोस नोड और साथ में सिग्नल नोड्स भी कहते हैं। तो जब भी ये नोड्स स्वेल अप करेंगे तो विल बी गेटिंग एन आइडिया एंड एन इंडिकेशन दैट देयर इज अ मेटास्टेसिस अकरिंग इन द लोअर और द एब्डोमेन रीजन। जैसे हमने देखा कि स्टमक से जितने भी लिम्फ आ रहा था वो आफ्टर ड्रेनिंग टू सिस्टर्ना काइली इट कैन आल्सो रीच द supraclavicular, the left supraclavicular lymph node, because we know that stomach is present on the left side, right? So this was a Trojer sign which you need to know, and due to this reason we also call the left supraclavicular nodes as the signal nodes or the Werkho's nodes. So that was all about the blood supply and the lymphatic drainage of the stomach. I hope it was helpful for you. Thank you so much.